वेलकम टू दिस अवर गीता ज्ञान यज्ञ। आई कॉल इट ए यज्ञ। गीता ज्ञान का यज्ञ है हमारा ये। और इसमें अभी कुछ आहुतियाँ डालनी बाकी हैं। मोर और लेस वी आर नाउ गोइंग टू फिनिश इन नेक्स्ट 2 or 3 more सेशंस। तो लास्ट सेशन में आज से 5 हफ्ते पहले हमने चैप्टर 18 शुरू किया था, और उसमें अप टू वर्स 19 वी हैड स्टडीड। इन 19 श्लोकों में पहले तो भगवान ने अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। वो 11 श्लोक तक इसी के विषय में उन्होंने चर्चा की। उसके बाद देन भगवान डिस्क्राइब्ड के व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। रिजल्ट्स ऑफ एक्शन कैन बी good according to your expectations, it can be below your expectations, or it can be mixed results। सुख और दुख दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। And then he started describing from verse 14 5 factors which are responsible for accomplishment or completion of any action. And those factors were the physical body, number one. Number two, the soul, आत्मा, जिससे आप सबको एनर्जी मिलती है, which gives you the प्राण शक्ति to do this work. And third was the 12 instruments of action. These are 5 sense organs, 5 organs of action, your mind and your intellect. And then for doing any action, you require efforts. You require chesta, which made by these 12 instruments. And the last one was, which is the most important one, is the divine factor, the दैवी शक्ति, जिसके बारे में हमने उस दिन वर्णन भी किया था। और एक्शन कैन बी डन इन 3 ways, बाय फिजिकल बॉडी, बाय शारीरिक, मानसिक, या आपकी वाणी द्वारा भी। 3 तरह के एक्शंस का भगवान ने वर्णन किया था। एंड देन in the last 18 and 19 verses we discussed about 3 factors which motivate or propel an action. These are Gyan, Gye and Gyata, which are called triad of knowledge. And then the 3 constituents of action, which is called the triad of action. These are basically these instruments of doing action, these called karan. Then karam, the action itself, and the karta, the doer. Now we move further to verse 20. श्लोक 20, 21 और 22 में अभी जो भगवान 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं। जो ट्रायड ऑफ नॉलेज, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञान इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस ज्ञान व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज नॉट द आत्मज्ञान, द सेल्फ नॉलेज। इट इज knowledge about what your goal of action, what you want to do, the knowledge about that action, what is your goal, that is being in fact discussed, called the ज्ञान here. So श्लोक 20 में सबसे पहले भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। ये लास्ट स्टंजा है इस वर्ष का, द 4th स्टंजा। तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। हे अर्जुन, तुम उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान जानो। येन ईक्षते, जिसके द्वारा व्यक्ति यह देखता है कि सर्वभूतेषु विभक्तेषु, के सभी जो प्राणी हैं, जो डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्राणी हैं, उन सब में एकम भावम अव्ययम अविभक्तम, ये 3 शब्द जो है, एकम भावम इज 1 वर्ड, अव्ययम अविभक्तम, के जो सभी प्राणियों में जो डिफरेंट प्रकार के प्राणी हैं, उन सब में एक ही अविभाजित अविनाशी परमात्मा को एक भाव से, समभाव से मौजूद है, उसको देखता है। दैट नॉलेज इज कॉल्ड ए सात्विक ज्ञान। तो in सात्विक ज्ञान, ए पर्सन बाय विच he says same one undivided imperishable Paramatma present within all the diverse type of creatures in this world. So all these creatures, the substratum of all creatures is Paramatma.
So a person means having a sattvic knowledge, he sees the unity behind all diversities which exist in this universe. He knows God is one without a second. जैसे let's take an example of an electrical engineer. He says he sees the same current flowing in all the gadgets, whether it is a heater, whether it is a cooler or a AC or whatever it is. So he says the same current flowing in all the gadgets. Same way, like a goldsmith, he sees the same gold present in all the ornaments. In the same way, a person having a sattvic knowledge, he sees one Paramatma behind every creature in this world. Like they are all form of a bead of a garland. So जो सभी प्राणियों में जो आत्मा मौजूद है, he sees this as a very tiny अंश, पार्ट ऑफ भगवान, छोटा सा अंश है जिसका स्वरूप वही है जो परमात्मा का स्वरूप है। ये हम पहले भगवान इन सब चैप्टर में बता चुके हैं। अग्नि की जैसे ज्वाला है वो एक समान है, जैसे उसका गर्मी हो या प्रकाश हो, उनकी एनर्जी एक है बेसिकली। तो सब कुछ भगवान पर निर्भर है, वो सब में भगवान एक भगवान को देखता है। जो मुझ में है वही तुझ में है। वो इन अलग अलग प्राणियों को अलग अलग नहीं देखता, वो सबको एक ही सिक्के के पहलू देखता है। और वास्तव में यही सनातन ज्ञान है हमारा। हमारा सनातन ज्ञान क्या है? यही है कि ईश्वर एक है, एक, उसके सिवाय और कोई दूसरा भगवान नहीं है। आप चाहे उसको अलग अलग नाम से पुकार लें, उसके सिवाय कोई दूसरा भगवान नहीं है। हम सब उसी ईश्वर की अभिव्यक्तियां हैं। वी आर ऑल जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम गॉड। इसलिए हमारे धर्म में आपने देखा होगा, इस मंत्र का आप जब भी कोई उपासना करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तो सारा का सारा जो ज्ञान है वो इसी श्लोक में छुपा हुआ है। अब नेक्स्ट वर्स 21 में भगवान रासिक ज्ञान क्या है इसके बारे में बताते हैं। तू तत् ज्ञानम विद्धि राजसम, लेकिन तुम उस ज्ञान को रासिक ज्ञान जानो। यत ज्ञानम, जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में जो निवास करने वाली आत्मा है, पृथक विधान, एक दूसरे से भिन्न देखता है। नाना भावान पृथक्त्वेन, वो अलग अलग आपस में बिना किसी संबंध के देखता है। वेत्ति, वो देखता है, वो सबको प्राणियों को एक ही ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं देखता। सो ए रासिक knowledge person divides the human beings on the basis of their caste, creed, religion, sect, nationality, etc. So this is how a rasic gyan has been described. And this has been described, of course, earlier also in chapter 14 and many other chapters. तो जैसे कहा था कि जो चैप्टर 18 है वो एक पूरे इस गीता ज्ञान का सार है। तो एक रासिक ज्ञान वाला वो सिर्फ बाहरी अपीयरेंस के बेसिस पर हर एक को अलग अलग मानता है। देन श्लोक 22 को तामसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं तत् तामसम उदाहरितम, उस ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहा जाता है। यत तू, जिस ज्ञान के द ज्ञान बाय विच एकस्मिन् कार्य सक्तम, वन remains engrossed in one particular object or particular person. एकस्मिन् कार्य सक्तम, कृत्सन्वित, as if it were the whole, कि वही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अहेतुकम, वो किसी तर्क पर आधारित नहीं होता। तत्व अर्थवत, और न ही किसी सत्य पर आधारित होता है। अल्पम च, एंड विच इज वेरी ट्राइवियल टू, वो बहुत ही ट्राइवियल होता है पर वो उसको एक होल मान लेता है। उसे तामसिक ज्ञान कहा जाता है।
इसका मीनिंग क्या है? तामसिक ज्ञान बेसिकली इज बेस्ड ऑन ए ब्लाइंड फेथ. He gets attached to one particular person on one particular object and sees this, considering this as a whole, as if उसके अलावा कुछ नहीं है. अगर if he is attached to wealth, he thinks wealth is everything. He can get attached to one particular person and he can start worshipping him as if he is the God himself. और या उसके कोई अपनी वासनाएं हैं, वो उन्हीं की पूर्ति में समझता है कि मेरे को सब कुछ सुख मिल जाएगा. सो दिस इज ए तामसिक ज्ञान, हाउ इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड. ही इट्स a very very trivial matter, they are all temporary, but he does not understand that. So he sometimes I mean, this is the basic problem we have seen in our society, that there are so many self proclaimed gods. तो वो किसी एक को पकड़ कर बैठ जाता है और उसी को भगवान मानकर उसी में लग जाता है. सो दैट इज बेसिकली, उसके पीछे जो कारण है वो तामसिक ज्ञान है, बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट भगवान सब में एक है. तो दैट इज द बेसिक. और वो उसी के जो वो उसका जो सेल्फ जिसको भी वो मानता है, जो भी वो प्रीच करता है, वो उसी को एक सत्य मान लेता है और उसी के पीछे लगा रहता है. तो इन समरी अगर हम कहें कि सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान क्या है, जो सात्विक ज्ञान है, इट रिकग्नाइजेज यूनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डाइवर्सिटी. जो राजसिक ज्ञान है, इट सीज एवरीबॉडी एज ए डिफरेंट क्रिएचर with different names and forms and accepting them as a independent identity. And the tamasic gyan hai, he sees basically imperfect as perfect. He cannot distinguish between what is right and what is wrong. So इस प्रकार 3 प्रकार का ज्ञान बताने के बाद भगवान आप श्लोक 23, 24 और 25 में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं. सबसे पहले कर्म यत, जो कर्म नियतम. नियतम का अर्थ है जो शास्त्रों में नियत किए गए हैं, वे जो कर्म है. संग रहितम, और जो आसक्ति से रहित है. संग रहितम, किसी अटैचमेंट से रहित है, जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं. अराग द्वेष तय कृतम, जो बिना किसी राग द्वेष के किए जाते हैं, विदाउट एनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स और हेट्रेड एंड लाइकिंग एसेट्रा. देन एफल प्रेप सुना, जो फल की आसक्ति से रहित होकर किए जाते हैं. विच आर परफॉर्म्ड विद द एटीट्यूड ऑफ एज कंसिडरिंग इट एज ए ड्यूटी, कि ये मेरा करना कर्तव्य है, इस भाव से किए जाते हैं. एज ए सरेंडरिंग टू द गॉड, एज ए वर्शिप टू द गॉड. सो इस इन कर्मों को भगवान ने सात्विक कर्म डिस्क्राइब किया है. दिस इज बेसिकली एन अनदर डेफिनेशन ऑफ कर्म योगा. You will find that this is the same definition has been given for कर्म योगा. और इसी को भगवान ने, अगर आपकी याद होगा, अध्याय 2 में श्लोक 50 में कहा था, योग है कर्मसु कौशलम. यही जो है कर्म में जो कुशलता है, यही कर्म योग है. तो बेसिकली अगेन सात्विक कर्म का है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे से व्यवहार करें. तो दैट बेसिकली इज द क्रक्स ऑफ ए सात्विक कर्म. देन सो इसके 4 टेस्ट हैं जो श्लोक में बताए गए हैं, कि सात्विक कर्म के 4 टेस्ट हैं. पहला है नियतम, द एक्शन शुड बी एज पर द स्क्रिप्चर्स, एज डिफाइंड इन द स्क्रिप्चर्स. जो आपके शास्त्र हैं, जिसको जो वेद हैं या उपनिषद हैं या जो भी है, जिसको भी आप अपना शास्त्र या गीता में जो बताए गए हैं, सो दे आर as prescribed in the scriptures. And second is sangrahitam, which are performed without any self motive, without any attachment. And third is arag dveshata, बिना किसी likes और dislikes के, बिना किसी राग और द्वेष के. And the fourth one is फल अप्रेप सुना, जो किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से, कि मेरे को यही फल मिलेगा,
तभी मैं करूँगा, तो लाइक दैट। सो ये 4 टेस्ट बताए गए हैं। और जो सात्विक कर्म करता है उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होता है? योर माइंड एंड इंटेलेक्ट गेट्स प्योरीफाइड। तो जब माइंड इंटेलेक्ट प्योरीफाई होगा तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तभी आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सो सात्विक कर्म बेसिकली वो है। श्लोक 24 में भगवान राजसिक कर्म के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, यत तू कर्म, बट दोज एक्शंस क्रियते विच आर डन काम इप्सुना, इंस्पायर्ड बाय द सेल्फिश डिजायर्स, स अहंकारेण, और जो अहंकार से युक्त होकर, मैं की भावना से युक्त होकर किए जाते हैं, वह पुनः बहुल आयासाम, और जिसमें विच रिक्वायर लॉट ऑफ ग्रेट एफर्ट्स, शारीरिक और मानसिक बहुत सी एफर्ट्स जिसमें करनी पड़ती हैं, तत् राजसम उदाहरितम, वे कर्म राजसिक कर्म कहे गए हैं। सो बेसिकली द राजसिक कर्म आर मोटिवेटेड बाय ह्यूज एम्बिशंस एंड ह्यूज डिजायर्स to prove one's superiority over others. So basically, all political leaders, I would say, and even industrialists to some extent who are only looking up for making more money, they come under Rajasic karmas. Then तामसिक कर्म क्या है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, जो श्लोक 25 है, यत कर्म, जो कर्म मोहात, मोह के वश होकर किए जाते हैं, अनुबंधाम क्षयम हिंसाम, अनुबंधम का अर्थ होता है परिणाम की चिंता किए बिना, क्षयम किसी भी हानि की चिंता किए बिना, हिंसाम या हिंसा को न विचार कर किए जाते हैं, अनपेक्ष्य च पौरुषम, और जिसमें आपकी अपने सामर्थ्य के अनुसार नहीं किए जाते कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपका सामर्थ्य है, उसको ध्यान में न रखते हुए कि आरभ्यते आरंभ किए जाते हैं, तत् तामसम उच्यते, वे जो कर्म है वे तामसिक कर्म कहे जाते हैं। सो दिस मीन्स जो तामसिक कर्म है, दे आर डन विदाउट एनी प्रॉपर थिंकिंग, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट आर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दैट वर्क। तो इस प्रकार जो कर्म किए जाते हैं उन्हें भगवान ने यहाँ पर तामसिक कर्म कहा है। तो जैसे चोरी करना, शराब पीना, ये सब के सब जो है कि तामसिक कर्म है। अब हम आगे मूव करते हैं। जो जैसे थर्ड पार्ट ऑफ कर्मा, जो एक कर्म करने के जो फैक्टर्स हैं, उसमें नेक्स्ट पार्ट आता है कर्ता का, डूअर। हु इज द डूअर? हु द डूअर? डूअर इज बेसिकली जीव, द आत्मा, नॉट दिस फिजिकल बॉडी, बट द आत्मा हु परफॉर्म द कर्मा। नाउ देर आर three gunas of prakriti which affect our mental life and intellectual abilities of all of us, and all our actions will basically are due to the predominance of all these gunas in us. So now Bhagavan will describe the doer based on these three gunas, the three types of karta. So सबसे पहले वो सात्विक कर्ता के बारे में बताते हैं। कर्ता सात्विक उच्यते, ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहा गया है। इसमें 4 अगेन जो है कि कहा, इसकी डेफिनेशन कही गई है सात्विक कर्ता की। मुक्त संघ है। अब ये दिस विल ऑल मैच विद सात्विक ज्ञान, जो क्या है बेसिकली, दिस विल ऑल रिपीटिंग इन ए डिफरेंट वे, कॉलिंग देम एज सात्विक कर्ता। मुक्त संघ, हु इज फ्री फ्रॉम लॉन्गिंग फॉर द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क, he is detached from the fruits of his actions. And second is अनहमवादी, उसमें अहंकार की भावना का अभाव होता है। he does not have the notion of I, me and mine, so he knows that he is not the real doer. जो आपकी आत्मा है, it is not the real doer. So whatever is being done, he knows is done by his body, mind and intellect, but not by his atma. So his Atma is only a witness. He's that type of Karta who sees himself only as a witness. So that is Anhamvadi. And third is Dhriti Utsaha Sthapita. ये तीसरा गुण है सात्विक कर्ता का।
that firmness and enthusiasm. This is the third swarup or third gun of a sattvic karta. He knows that I am Sat Chit Anand. मैं इन सब चीजों से दूर हूं. He is always full of firmness, always full of enthusiasm. Nothing can frighten him. That is Dhriti Utsah Stapita. And fourth one is Siddhi Asiddhiyo Nirvikaraha. That he remains equanimous in success and failure. If failure comes, he does not get disturbed. If success comes, he does not feel elated. So he remains equanimous. So these four qualities of a sattvic karta have been described in this verse. Then verse 27, Bhagavan describes a rasik karta. A rasik karta is one. The karta rajasa hai parikirtita hai. Such a doer is called rasik doer who is a ragi. रागी का मतलब है who is obsessed with the fulfillment of his desires. That person is called a ragi, not the other meaning of ragi. Ragi here is who is obsessed just for the fulfillment of his desires. Then karam phal prepsu, who has lust for the fruit of his actions. Then lubdha. Lubdha means he is greedy. अगर एक डिजायर पूरी हो गई फिर और डिजायर्स पैदा हो जाती हैं. So he is lubdha, he is greedy, he is never satisfied. He craves for more and more money. Then हिंसा आत्मकः, वो दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला भी है. वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे इसमें दूसरों की हानि हो, दूसरों की हिंसा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देन भगवान ने कहा है अशुचि, जिसका जो इरादा है वो भी अपवित्र है, नेक इरादा नहीं है. वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नैतिकता का भी त्याग कर देते हैं. हर्ष शोक अन्वित है. सो हिज लाइफ रिमेन्स ए मिक्सचर ऑफ हर्ष एंड शोक, जॉय एंड सोरो. बिकॉज जब इसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं ही गेट्स इलेटेड, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ही गेट्स डिजेक्टेड. बिकॉज जो इच्छाएं पूरी जब हो जाती हैं, दोज आर शॉर्ट लिव्ड. So most of the time he remains dejected, full of शोक, दुख उसके जिंदगी में लगे रहते हैं. The next verse 28, अब भगवान तामसिक कर्ता के बारे में वर्णन करते हैं. कर्ता तामसः उच्यते, उसे तामसिक कर्ता कहा गया है. नंबर 1 इज अयुक्तः, ही इज अनडिसिप्लिन्ड. तामसिक जो कर्ता है वो अनडिसिप्लिन्ड है. He does not follow the injunctions, the guidelines given in the scriptures, and he does not know what is proper and improper, so he is always indisciplined. Second is prakritaha. He is uncivilized and vulgar in his nature. His mind and intellect are influenced by the lower types of tendencies. Third is stabdha. He is stubborn, arrogant, self-centered. He is obstinate in his views, does not listen to others. His minds and ears are closed with respect to others' views. Then Shatha, वो चालाक भी है, he is cunning. Nashkritik है, he is crooked. He doesn't harm even to those who help him. Then Alsa, he is lazy. He may have several duties to perform, but he sometimes does not do it, thinking it is laborious or painful. विषादी, और वो उदास और चिड़चिड़े स्वभाव वाला है. He always remains irritable or unhappy. So this is how it has been described. And the last one is in this definition is Dirgh Sutri Cha. He is always doubting and fearing nature. उसको डर लगा रहता है कि पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और इसलिए वो कर्म को टालता रहता है. So he is दीर्घ सूत्री. So he keeps on postponing his duties. So thus these three types of kartas, the doers, have been described in this shloka.
सो इस प्रकार से भगवान ने जो 9 श्लोक हैं 20 से लेके और 28 तक ज्ञान, कर्म और कर्ता को भगवान ने डिस्क्राइब किया बेस्ड ऑन द 3 गुणास. नाउ हाउ एन एक्शन इज accomplished और completed तब होता है व्हेन ए डूअर, ए कर्ता, अंडरटेक्स एन एक्शन motivated by his knowledge about what he wants to achieve in life. And then when you have decided, you have a knowledge about what needs to be done, then he require continuous efforts to complete that work. तो उस एफर्ट्स को करने के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता है. एक है बुद्धि, इंटेलेक्ट, एंड सेकंड इज धृति, इन संस्कृत मीनिंग डिटर्मिनेशन. सो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अल्टीमेटली आपको अपनी बुद्धि और डिटर्मिनेशन, धृति, इन 2 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है. और इन 2 तत्वों को अब जो है इनके बेसिस के ऊपर आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क एंड योर क्वांटिटी ऑफ वर्क विल बी अफेक्टेड. तो भगवान अभी अगले 6 श्लोकों में 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति का वर्णन करने जा रहे हैं. एंड दीज 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. तो कई बार हम सोचते हैं कि ये ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, क्योंकि जो ज्ञान भी हमने यही बोला कि आपका लक्ष्य क्या है वही ज्ञान है. अब उसको जो है कि बेसिकली क्या है कि जो थॉट्स हमारे माइंड में एंटर होते हैं दे आर एनालाइज्ड बाय आवर बुद्धि. सो बुद्धि इज ए इंटेलेक्ट, द एनालाइजिंग पावर, एंड दैट एनालाइजिंग पावर ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. तो ये यही जो हमारी बुद्धि है यही डिस्क्रिमिनेट करती है, इसमें विवेक शक्ति है कि राइट और रॉन्ग को बारे में पता करने की. वंस बुद्धि डिसाइड्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, what is to be done and what is not to be done, that knowledge is called ज्ञान about that work. And जब ये सही और इसका पता चल जाता है, then बुद्धि takes a decision and gives direction to the mind to get that work done through the various organs. तो परंतु जब ये कोई भी काम करना होता है तो उसके जब तक आप में उसके प्रति डिटर्मिनेशन नहीं होगा, एक स्टेडफास्टनेस नहीं होगी, धृति नहीं होगी, तब तक वो काम आप पूरा नहीं कर सकते. तो इसलिए बुद्धि और धृति बोथ आर बेसिकली मूव टुगेदर. विदाउट बोथ दिस टुगेदर ए वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड. सो दीज 2 फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. धृति को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं कि धृति क्या है. ये आपकी एक इनर पावर है ऑफ आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट, कि जिसके बिना अगर आप उसमें लगे नहीं रहेंगे, मन में अगर उसके प्रति डिटर्मिनेशन नहीं होगा, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो सकता, आप बीच में छोड़कर भाग सकते हैं उसको. सो धृति इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंप्लीशन ऑफ ए वर्क. तो इसलिए भगवान ने इनको बुद्धि और धृति को उसमें से चुना है कि इसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार की है. अगर ये बुद्धि बुद्धि और धृति आप में नहीं है, दोनों ठीक तरह से उनमें आपस में संतुलन नहीं है, तो आप क्या होगा, यू विल कीप मूविंग इन दिस लाइक ए ड्राई लीव. और जैसे कई इसमें लिखा हुआ है एक उपनिषद में कि व्यक्ति एक छिपकली की तरह घूमता रहेगा इधर उधर, अगर उसमें डिटर्मिनेशन नहीं है. तो इस तरह से जो है कि एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं उपनिषदों में. पर बेसिकली क्या है कि दीज टू एम्फेसाइज कि बुद्धि और धृति है, योर इंटेलिजेंस एंड योर डिटर्मिनेशन, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच वी मस्ट अंडरस्टैंड. क्योंकि ये भगवान का ये सब यहाँ बताने का एक पर्पज है कि जब तक इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप अपना जो एक लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग है उसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई ही इज, although he has been explaining it in previous chapters, here he is explaining it with respect to different gunas and in very very briefly. So सबसे पहले श्लोक 29 में भगवान जो है सात्विक बुद्धि, श्लोक 29 में इसलिए भगवान पहले अर्जुन को कहते हैं कि बुद्धे धृते च एव, बुद्धि और धृति में जो भेद है, भेद गुणतः त्रिविधाम
इन प्रकृति के गुणों के अनुसार जो भेद है, प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन, अब मैं उन भेदों को विस्तार पूर्वक और कंप्लीटली संपूर्णता से तुमको वर्णन करूंगा। श्रीनु, हे अर्जुन, तुम उसको सुनो। इसलिए भगवान, एक पूरा श्लोक इसके ऊपर है, भगवान उसको अर्जुन को कह रहे हैं तुम सुनो कि इस बुद्धि और धृति में जो 3 गुणों के अनुसार क्या भेद है, तुम उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तो श्लोक 30 में भगवान पहले सात्विक बुद्धि का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, वह बुद्धि सात्विकी है, या वेति, जिसमें यह जानने की विवेक शक्ति है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, कि कौन सा कर्म करना चाहिए, दैट इज प्रवृत्ति, किस कर्म में लगना चाहिए, और किस कर्म का त्याग करना चाहिए, कोई जो किस कर्म को नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड निवृत्ति, किस कर्म से अपने आप को अलग रखना चाहिए। च कार्य अकार्य, कौन सा कार्य करना उचित है, कौन सा कर्म करना उचित है, दैट इज कॉल्ड कार्य, और कौन सा कर्म गलत है, नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अकार्य। भय अभय, किस कर्म को करने से भय नहीं होता, भय नहीं लगना चाहिए, जिस कर्म आप निडरता से कर सकते हैं, अभय, और किस कर्म करने से आपको भय लगता है, किस कर्म करने से आपको भय नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में जो डिस्टिंग्विश कर सकता है, दैट बुद्धि। एंड देन बंधम मोक्षम च, एंड विच इंटेलेक्ट ट्रूली अंडरस्टैंड्स विच एक्शन कैन बाइंड यू एंड विच एक्शंस कैन लिबरेट यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो जिस बुद्धि में ये जानने की विवेक शक्ति है, दैट बुद्धि हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए सात्विक इंटेलेक्ट। सो इन ब्रीफ आई वुड से, सात्विक इंटेलेक्ट illuminates our mind with the light of knowledge, जिसमें एक एबिलिटी है रिफाइन करने की, टू डिस्क्रिमिनेट एग्जैक्टली बिटवीन धर्म एंड अधर्म और राइट एंड रॉन्ग। तो एक सात्विक बुद्धि जो है, एक रेगिस्तान के अंदर भी एक सुंदर बगीचे का निर्माण कर सकती है। तो दैट, किसी की सात्विक बुद्धि है, वो रेगिस्तान को भी एक हरे भरे बाग में तब्दील कर सकता है। तो इट कैन टर्न ए फेलियर इनटू ए सक्सेस, अगर आपकी सात्विक बुद्धि है। सो जो इसलिए जो सात्विक बुद्धि में अपनी शॉर्टकमिंग आपको अगर पता है, यू कैन टर्न दो शॉर्टकमिंग्स इनटू योर स्ट्रेंथ बेसिकली। सो दैट इज ए सात्विक बुद्धि। एक किसी इंग्लिश पोइट ने लिखा है, और उसका मेन जो है ये है कि वन में 2 अलग अलग मार्ग हैं, मैंने उस मार्ग को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते थे, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। इफ यू he chose a path which was less traveled by, and he says that made all the difference. So it is, and that sort of a, a discriminating power of intellect, which path to choose, that is a sattvic buddhi. Then next verse 31, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, बुद्धि सा राजसी, वह बुद्धि राजसी है, यया धर्मम अधर्मम च, जो धर्म और अधर्म में, कार्यम च अकार्यम च, कर्तव्य और अकर्तव्य में, एव अयथावत प्रजानाति, निश्चय पूर्वक सही प्रकार से भेद करने में असमर्थ है, ऐसी बुद्धि रासिक बुद्धि है। सो रासिक बुद्धि इज कंफ्यूज्ड एंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ए ड्यूटी, व्हाट इज ए नॉन ड्यूटी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट और व्हाट इज ट्राइवियल, what is permanent or what is temporary. It cannot distinguish between these. What is valuable, what is insignificant. A Rasik Buddhi cannot distinguish between these. So, and all of us must have some time or the other experienced this. Sometimes it becomes very, very difficult to find out what should we do, what should we not do. So, a right decision cannot take. So, that sort of Buddhi is a Rasik Buddhi. Then verse 32, बुद्धि सा पार्थ तामसी,
हे अर्जुन, वह बुद्धि तामसिक कही जाती है, तमसा आवृता, जो अज्ञानता के अंधकार से ढकी हुई है, which is shrouded in ignorance, which is not illumined by the sublime knowledge. अधर्मम धर्मम इति या मन्यते, जो अधर्म को धर्म मानती है और धर्म को अधर्म मानती है। सर्व अर्थान विपरीतान, और विच जो सबका उल्टा मीनिंग निकालती है, विच ऑलवेज फिल्ड विद नेगेटिव थॉट्स। उसके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। वो हर चीज में, हर वस्तु में या हर किसी भी विचार में उसका नेगेटिविटी देखते हैं। सो दैट बुद्धि इज ए तामसिक बुद्धि। सो देयर इट डज नॉट हैव ए फैकल्टी ऑफ जजमेंट एंड एबिलिटी फॉर ए लॉजिकल रीजनिंग, ड्यू टू विच ही विल ऑलवेज कंसिडर रॉन्ग एज राइट, राइट एज रॉन्ग। और जैसे अपने माँ बाप की सलाह को भी गलत समझना, कि दैट सॉर्ट ऑफ बुद्धि इज ए तामसिक बुद्धि। अब अगले 3 श्लोकों में 33, 34 और 35 में भगवान 3 प्रकार की धृति का वर्णन करने जा रहे हैं। और धृति का मैंने पहले ही बताया आपको, धृति क्या है। इट इज आवर इनेट स्ट्रेंथ, आवर इनेट नेचर, आवर लेटेंट पावर्स इन आवर बॉडी एंड माइंड। तो श्लोक 33 सबसे पहले भगवान कहते हैं, धृति सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, वह धृति, दैट स्टेडफास्टनेस, डिटर्मिनेशन और विल पावर इज सात्विकी, सत्वगुणी है, जो धृत्या यया योगेन, दैट इज डेवलप्ड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। अब योगा का यहाँ पर एक जनरल मीनिंग है, धार्यते अव्यभिचारण्या, एंड विच सस्टेन्स थ्रू विथ फर्म एंड इमूवेबल करेज, मन है प्राण इंद्रिय क्रिया, जिसकी जो एक्टिविटीज ऑफ माइंड एंड द लाइफ एयर फोर्सेज एंड सेंस ऑर्गन्स इनको सस्टेन करता है। सो दैट सॉर्ट ऑफ धृति, दैट सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ए सात्विक डिटर्मिनेशन। ए सात्विक डिटर्मिनेशन वाला जो व्यक्ति है, ही कैन विड्रॉ हिज माइंड फ्रॉम वेरियस टेम्पटेशंस। हर एक के सामने बड़ी टेम्पटेशन आती है, अरे यार ये मौका है धन कमाने का, ये यहाँ पर इस इंद्रियों का सुख भोगने का, जो उन टेम्पटेशन से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। दैट सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन शुड बी देयर, एंड दैट इज ए सात्विक धृति। श्लोक 34, धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, वह धृति राजसिक है, यया तू, बाय विच ए पर्सन धृत्या धार्यते, होल्ड्स ऑन टू, धर्म काम अर्थान, his duties, his desires and wealth, he holds on to them, प्रसंगेन फल आकांक्षी, उनको उनके साथ कैसे होल्ड ऑन करता है, आउट ऑफ अटैचमेंट, out of enjoyment of the fruits of actions, out of enjoyment of his sensual pleasures. So he holds on to his duties, his desires, just out of these attachments. So that is a Rasi Dhriti. Then verse 35, धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, वह धृति तामसी कही जाती है, यया दुर्मेधा, by which a person has a foolish and stupid thinking. He has a asuri thinking. न vimunchati, he does not give up or remains clinging on to what? Swapanam, his dreams. भयम, जिसमें फियर में लगा रहता है वो। शोकम, ग्रीफ। विषादम, एंजाइटी। एंड मदम एवच, एंड प्राइड, वो इन चीजों में लगा रहता है। ही रिमेन्स क्लिंगिंग टू दीज, एंड दिस ऑल दिस जो है क्वालिटीज, दे कम अंडर दुर्मेधा, बेसिकली जिसके इविल थॉट्स हैं, जो अल्प बुद्धि वाला है। सो दीज आर द बेसिकली 5 इमोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ, जो यहाँ पर भगवान ने डिस्क्राइब किए हैं। दिस इमोरल वैल्यूज आर द ड्रीम्स, फियर, ग्रीफ, डेस्पेयर एंड प्राइड। और जिस पर्सन में ये है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ए दुर्मेधा, हु इज हैविंग ए इविल इंटेलेक्ट।
दुष्ट बुद्धि वाला. So he always thinks in the evil ways. So he only for him the sexual pleasures are always, he keeps on those, keeps clinging to those only. He holds on to those. So he keeps grieving over some unfortunate incident which might have happened in the past. He keeps grooming over this will happen in future. So he does not do something. So these sort of जो एक मन में है, डिटर्मिनेशन है, इस तरह का, दैट इज ए तामसिक धृति. सो इस प्रकार भगवान ने इस 3 प्रकार की धृति का वर्णन किया. तो अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, रासिक धृति में है द डूअर इज ए सीकर ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शंस, whereas in tamasic dhriti the doer is a confused and diluted intellect. But a person having sattvic dhriti has the power of discrimination, so due to which his mind is engaged in noble works only. जो सात्विक धृति वाला है, he is not attached to fruit of actions, whereas the रासिक and तामसिक धृति है, they are attached to the fruits of actions. और रासिक धृति में there is a desire for worldly things, so that he can get happiness etc. जो तामसिक व्यक्ति है उसमें तो विवेक बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उसका जो मन है वो केवल भोग और विलास में ही लगा रहता है. जबकि जो सात्विक धृति वाला पर्सन है, he does not seek sensual pleasures only. He does his duty as per the scriptures, described in scriptures. तो भगवान ने इन सब का वर्णन किया. इन सबको वर्णन करने का जो उद्देश्य है, जो पर्पज है भगवान का, कि ताकि हम अपने मन में सात्विक बुद्धि का विकास कर सकें. अध्याय 14 में कहा गया है कि नो नो वन पर्सन इज ओनली सात्विक और रासिक और तामसिक. एवरी वन इज ए मिक्सचर ऑफ दीज 3 गुणास. हर एक में सात्विक भी है, रासिक भी है, तामसिक भी है. ये सबका अगर हमें भेद पता है सात्विक, रासिक और तामसिक का, वी हैव टू वर्क सो दैट वी कैन डेवलप द सात्विक क्वालिटीज, सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति, सात्विक कर्म. हम इसको डेवलप करें अल्टीमेटली, सो दैट परसेंटेज इट विल गो ऑन चेंजिंग. अल्टीमेटली to reach 100% sattvic in everything will take a long time. So, but one has to try, one has to transform himself or herself as a sattvic person. So that is the basic purpose. That's why he says the knowledge of these things are very important. अगर किसी को पता नहीं है तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा. So that's why भगवान ने इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. Now, after describing all this is basically the theory of karmas, the science of karmas, कि कर्म करने के पीछे हमारा क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, ये सारा का सारा भगवान ने इस चैप्टर 18 में बहुत ही एक संक्षेप में इसका वर्णन किया है. अब जो है कि हम अब ये कर्म क्यों करते हैं. हर कर्म को करने के पीछे हमारा उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, पर अल्टीमेटली हम क्यों करते हैं? सुख पाने के लिए. हम ये करते हैं इन सर्च फॉर हैप्पीनेस. अब वो उसको जो पर हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो भी अलग अलग आदमी के लिए डिफरेंट है. और जो हम यहाँ पर जो हैप्पीनेस की बात हो रही है वो एक आनंद की बात हो रही है. जो आपका वास्तविक जो एक इनर हैप्पीनेस है, जो सुख की तलाश है, आनंद की जो तलाश है, हम सब उसी तलाश के अंदर, उसी हैप्पीनेस की, आनंद की तलाश के अंदर ही लगे हुए हैं. पर हम एक गलत डायरेक्शन में आनंद की तलाश करते हैं. हम आउटसाइड वर्ल्ड में आनंद को ढूंढ रहे हैं. जब हम अपने अंदर सुख आनंद की तलाश करेंगे, यू विल फाइंड यू आर ऑलरेडी हैप्पी. तो भगवान अब जो है 3 प्रकार के सुख का वर्णन करने जा रहे हैं. तो भगवान श्लोक 36 में कह रहे हैं, ओ अर्जुना, नाउ हियर फ्रॉम मी, इदानीम शृणु में भरत ऋषभ. हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, नाउ लिसन फ्रॉम मी. सुखम तु त्रिविधम, 3-fold types of pleasures, happiness, आनंद. अभ्यासात रमते यत्र,
in which a man finds happiness by experience, dukh antam cha nigacchati, and try to attain the end of all sorrows. What we are doing, we are also trying to reach the ultimate happiness so that we don't get these sorrows, the dukkhas again. So that is the end of all sorrows. So, but how we reach this end of all sorrows? Where we can find this true joy? Can it be purchased by money or by land or by power? We keep on searching it in this outside world. हम उसकी खोज करते रहते हैं पर हमें मिलता नहीं है. तो इसीलिए कहते हैं सच्चा आनंद तो केवल आपके भीतर है, आपकी आत्मा में है. और जब आप इसको अपने भीतर खोजना शुरू कर देते हैं, यू कैन गेट ए ग्लिम्स ऑफ इट. आपको एकदम उसका ग्लिम्स लगेगा. हाँ. सो देयरफॉर भगवान विल नाउ डिस्क्राइब these three types of sukh. In the next verse 37, Bhagavan explains what is sattvic happiness. tat sukham सात्विकम प्रोक्तम. वह सुख सात्विक कहा जाता है. यत तत् अग्रे विषम इव. जो सुख शुरू में यद्यपि वो विष के समान लगता है, may appear as a poison initially, परिणामे अमृतम उपमम, परंतु अंत में जिसका जो परिणाम है वो अमृत के समान है, लाइक ए नेक्टार इन द एंड. आत्मबुद्धि प्रसादजम, विच इज born from the purity of your mind. When mind is situated in your self atma, when your mind is situated in your own atma, so that is the type of sukha is called a sattvic sukh. So we must have all have experienced. Okay, hard and honest work will certainly help you in the long run when you to achieve your target. A student has to work very hard in the beginning, so that in the long run he can do a good education and get a good job. If he does not, so शुरू में लगेगा उसको बहुत शारीरिक कष्ट है, बहुत काम करना पड़ता है, पर अंत में जब उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, he feels happy. तो इसी प्रकार से एक स्पोर्ट्समैन है. In the beginning he will have to do lot of practice, lot of this thing, but when he becomes expert and gets some medal, he feels so elated, so happy. So that sort of sukh, which in the beginning may appear to be full of miseries, but in the end it will give you a very long lasting happiness. शुरू में एक डॉक्टर भी आपको शुरू में कड़वी दवाई देता है. उसका दवाई देने का मतलब ही यही है ताकि उसको कड़वी दवाई ली आपने, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म आपका स्वस्थ जीवन रहे. तो ये जो है इसको सात्विक सुख भगवान ने कहा है कि शुरू में आपको कष्ट सहन करना पड़ सकता है, परंतु अल्टीमेटली यू विल गेट ए लॉन्गर लास्टिंग हैप्पीनेस. तो अर्थ क्या है कि जो लाइफ आप मॉरल वैल्यूज के साथ जीते हैं, शुरू में आपको बहुत असुविधा होगी. पीपल विल नॉट कोऑपरेट विद यू. यू आर वेरी वेरी मॉरल, यू आर ऑनेस्ट. People may not like you, but ultimately it will prove out to be for your good. तो शुरू में ऐसे ही जब आप कोई भक्ति करते हैं या साधना करते हैं, आपको शुरू में कष्ट झेलने पड़ेंगे, पर जब एक बार आप उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगेगा कि हाँ, भगवान आपको मन की शांति जरूर अवश्य मिलेगी. तो इस प्रकार को इसको सात्विक सुख भगवान ने एक्सप्लेन किया है. देन वर्स 38, तत् सुखम राजसम स्मृतम. वह सुख रासिक सुख माना जाता है. विषय इंद्रिय संयोगात, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंस ऑर्गन्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स. तो हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं उनके साथ संयोग से जो आपको सुख मिलता है, दैट टाइप ऑफ सुख इज ए रासिक सुख. यत तत् अग्रे अमृत उपमम. आपको शुरू में लगेगा, उसके जब ये संयोग होता है
कि इट गिव्स यू प्लेजर्स लाइक नेक्टर, वो आपको अमृत के समान लगेगा इन द बिगिनिंग, परिणाम है विषमेव, परंतु बाद में वही सुख आपको विष के समान होता है। इट विल प्रोड्यूस यू इन द एंड सोरोज एंड सफरिंग्स। विचार कीजिए इसके ऊपर आप। तो सच ए जॉय इज शॉर्ट लिव्ड, दे आर मोमेंटरी, बट लीव्स इन इट्स वेक द ग्रीड, एंजाइटी एंड गिल्ट। आपके मन में खुद एक गिल्ट की भावना भी उत्पन्न होगी जब आप इस तरह के सुखों में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार का जो है चक्कर है, बेसिकली हम सबके साथ चलता रहता है। हम इस मोह रूपी जाल में फंस कर रह जाते हैं, और ये हमको दिव्य आनंद या लॉन्ग लास्टिंग आनंद प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जब हम यंग होते हैं, बेसिकली व्हेन वी आर यंग, वी may experience a lot of joy in enjoying our sensual desires. But as you become older, the same type of joy जो है, when your sense organ cannot function properly, it will provide you sorrow. You will be unhappy. So this happens with us as we become older. Our senses cannot enjoy those pleasures. If you enjoy those pleasures more as a young person, in the end, when you become old, the same sense organ will give you more sorrows. तो इस प्रकार से it's very very important that we detach ourselves from these sensual pleasures, which may be difficult or looks impossible, but कोई भी प्रयास विफल नहीं होता. One has to be, of course, have a firm determination. One can always practice that. Then verse 39, अब भगवान तामसिक सुख के बारे में बता रहे हैं कि तत् तामसम उदाहरितम, उन्हें तामसिक सुख कहा जाता है। यत सुखम च, एंड दैट सुख, निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम स्लीप, लेजीनेस एंड नेग्लिजेंस। मोहनम आत्मना, जो व्यक्ति को आत्मा को मोह में डाल देते हैं, इट डिल्यूज द पर्सन। अग्रे च अनुबंधे, ड्यूरिंग द एंजॉयमेंट स्टेज, अग्रे च अनुबंधे, एज वेल एज लेटर ऑन। वो अभी भी मोह के जाल में फंसे हुए हैं और बाद में भी फिर मोह के जाल में फंसे रहते हैं। जैसे आप निठल्ले बैठे हैं, मन में फालतू विचार आपके आएंगे। सो ही कैन फॉल प्रे टू मैनी वाइसेस लाइक स्मोकिंग, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा। सो he will remain deluded by these types of habits. So a sukh obtained from these habits, these vices, is a tamasic sukh. It can never quench his thirst. So इस प्रकार से भगवान ने 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया। इस प्रकार से यह वर्णन करने के बाद भगवान इसको अभी श्लोक 40 में समराइज करते हैं कि ये कैसे है, हाउ इट हैपन्स। भगवान श्लोक 40 में कह रहे हैं, न तत् अस्ति, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, सत्वम विच एग्जिस्ट्स पृथ्वीयां व दिवि देवेषु व पुनः, आइदर ऑन दिस अर्थ or among the gods in heaven or even beyond them. Look at how he has described it, neither in this earth nor in the heaven, ना ही देवी देवता जितने भी हैं, ना ही मनुष्य प्राणी, ना ही देवी देवता, ना ही उनसे भी बियॉन्ड अगर कोई है। यत प्रकृति जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ये सब प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। त्रिभी गुण ही एभी स्यात् मुक्तम, जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। तो ये इसी को भगवान की त्रिगुणमयी माया कहा जाता है कि देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ हु इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज 3 गुणास विच आर बोर्न ऑफ मटेरियल प्रकृति। और इसी मटेरियल प्रकृति को भगवान की माया कहा गया है। सो दिस होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस त्रिगुणमयी माया विच गिव्स ए स्पेशल पर्सनैलिटी टू ईच वन ऑफ अस। इन गुणों के बेसिस पर ही हर एक को अपनी अपनी एक स्पेशल पर्सनैलिटी मिलती है। एंड बेस्ड ऑन these gunas only, everybody has a different personality, and it depends upon the, as I said, proportion of these gunas, in what proportion these gunas are present in you.
अब उस प्रोपोर्शन के बेसिस पर ही, दैट्स वाई किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आपस में नेचर नहीं मिलेगा, किसी का स्वभाव नहीं मिलेगा, किसी की, मतलब एवरीबॉडी इज डिफरेंट बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ दीज थ्री गुनाज आर डिफरेंट। अब इवन आप एक चाय के का भी अगर कभी टेस्ट करेंगे, अगर उसमें दूध की और चाय की और ये मात्रा अलग अलग होगी, उसका टेस्ट अलग अलग होता है। इसी प्रकार बिकॉज दिस सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का जो मिक्सचर है वो किस मात्रा में है हर व्यक्ति में, और वो मात्रा भी बदलती रहती है टाइम के साथ। तो इसी तरह से ये जो नेचर है, ये व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो पर्सनैलिटी है या जो करेक्टर है, वो भी बदलता रहता है। दिस इज ऑल द इफेक्ट ऑफ दिस त्रिगुणमयी माया, भगवान की त्रिगुणमयी माया। तो इस श्लोक के साथ हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और फिर अगले एपिसोड में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस 18वें अध्याय के सेकंड एपिसोड में जो आज हुआ है, हमने 40 श्लोक तक इसका अध्ययन किया है। सभी का धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। और अब हम आपके जो भी कुछ शक हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, विल बी रेडी। ओवर टू। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। आपने आज का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं भीम जी से रिक्वेस्ट करूं कि इस कार्यक्रम को आगे चलाएं। थैंक यू संजीव जी। पहले तो ब्रिज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सिंपल भाषा में इस सब को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, और ये हर वक्त हर अपने इस प्रेजेंटेशन में यही प्रयास करते हैं कि हमको सब चीजें जो हैं वो ठीक ठाक से समझ में आए। और इसमें अब त्रिगुणी माया का जो भगवान ने बताया है